My name is Aviraj Parmar. I study in class 5 in Takshila International School, Mandi HP, and my hobbies are to play cricket, badminton, soccer. फ्री टाइम में मुझे खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता है, साथ में जीके की बुक्स पढ़ना भी। मैं मम्मा के साथ लूडो और चेस खेलता हूँ और मुझे पापा क्रिकेट और बैडमिंटन खिलाते हैं। पापा के साथ मैं स्विमिंग करने भी जाता हूँ। मैं बड़े होकर एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मुझे टेस्टी खाना भी पसंद है और खाना बनाना भी पसंद है, और मैं फ्री टाइम में मम्मा की भी हेल्प करता हूँ और मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। धन्यवाद।
Attention! Stand at ease. Beginning today, I must station, I express my heartfelt greeting to all of you present here. Today, we, the shining stars of Grade 10, are here to conduct today's morning assembly on the topic hard work and success. A positive and inspiring thought can brighten our day. Reading new ideas in the morning acts as a fuel, keeping us smiling and encouraging throughout the day. So, to present the thought for the day, here is Hardik with us. Good morning, everyone. Today's thought is the only difference between success and failure is the ability to take action. Thank you and have a wonderful day. Thank you, Hardik. आज का हिंदी सदविचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सुमित। सुप्रभात। आज का सुविचार, अगर आप जिंदगी में हारने का फैसला कर लेते हो तो कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपसे हमेशा कहता है कि तुमसे यह कभी नहीं होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सुमित। There is a fact behind every creation in this world. So to unfold one of them, here is Shivranjani with us. Good morning everyone. Today's fact is, if you sleep more than 11 hours a day, there is a 50% chance you will die within the next 3 years. Thank you and have a nice day. Hello everyone, I am Shelja Kashyap, working as a Director Principal at Takshila International School, Mandi. Today I am here to talk about Aviraj. He has qualified 4 rounds of GK Olympiad at Kisme Kitna Hai Dam. Now he is going to enter in the grand finale. If I talk about Aviraj, he is really good at studies. He likes to play cricket and play synthesizer, and yes, he likes to dance as well. So today I would like to congratulate his proud parents, his teachers to give us this opportunity, and I would like to wish him all the very best for the grand finale at Kisme Kitna Hai Dam. Thank you. Hello everyone, myself Malvi Kapoor, working here as a teacher in Takshila International School, Mandi. I am the class teacher of Aviraj, student of grade 5. Aviraj, I must say, as his name is as bright as sun, he is shining bright as a sun. Here in the school, he is really sincere about his studies. His behavior towards the teachers, I must say, we are very proud that he is so respectful towards the teachers as well as to his fellow mates. He always takes care of others' feelings. He never shouts in the class, never misbehaves. He is really such a nice person by heart. And I must congratulate him as he has, on behalf of my whole class and on behalf of the whole school, I wish him all the very best for the grand finale of Kisme Kitna Hai Dam. In GK Olympiad he has participated and he is going to take part in the finale soon. Okay, good morning everyone. Good morning. Okay, sit down everyone. So, we were doing our chapter of area and perimeter. So, today we are going to discuss about area. Okay? We have simply discussed the definition of it before. Now we are going to do question related to it. So, what is basically area? Area is, okay, can we cut it? Meter and breadth of the table is 1
area of the table. So we have the formula of table. Area of table is equal to length into breadth, and we have our terms 13 into 15. So how we are going to do it? 15 multiplied by 13. 3 5s are 15. 5 here, 1 goes here. 3 ones are 3. 1 carry, it will be 4. Now 1 5s are 5. 1 ones are 1. So we got our answer 195 square meter. Now you can write it. Okay? You need to have your pens with you. Now again, our second question was we need to find the area of a book. Okay, area of book is given to the measurement of the book is given to us. The book's length is your 15 centimeter and book breadth is your 19 centimeter. So how are we going to find it? Everyone look at the blackboard. Hello everyone, I'm Dr. Mamta Parmar. I'm Assistant Professor Botany at the Department of Higher Education, हिमाचल प्रदेश. मैं अविराज परमार की मदर हूँ. अविराज परमार जो कि 5th क्लास में है, इसने अभी KKHT किसमें कितना है दम कंपटीशन में क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अभी ये फिनाले में पहुँचा है. तो इसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस पर. अविराज बचपन से ही बहुत ही इंक्यूजिटिव, मतलब बहुत ही क्वेश्चंस पूछता था, ऐसा बच्चा रहा है और इसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चला रहता था, कोई ना कोई क्वेश्चन. और बहुत ही समझदार बच्चा है. फ्री टाइम में इसको खेलना पसंद है और साथ में ये पढ़ाई भी करता है. इसको बहुत सारी गेम्स बहुत छोटे होते से ही इसको जो जैसे बैडमिंटन है या क्रिकेट है, इन गेम्स में बहुत जैसे बोलते हैं परफेक्शन जो उस एज के बच्चों में नहीं आती है, तो वो आई थी. जब इसने स्विमिंग सीखी थी तो इसने तीसरे दिन स्विमिंग सीख ली थी और 4th डे ये 9 फीट जो होता है उस तरफ चला गया था. मतलब अभी 10 इयर्स का भी रिसेंटली हुआ है. तो बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा रहा है और ये नटखट तो है लेकिन उदंड बच्चा नहीं रहा है कभी भी. मतलब इसने शैतानियाँ नहीं करता, नटखट है, जैसे भोलेपन में नटखट शरारतें करते हैं बच्चे, पर उदंड कभी भी नहीं रहा है. बहुत ही समझदार है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है और क्योंकि मैं वर्किंग मदर हूँ तो समझता है और साथ में मेरे साथ किचन में भी हेल्प करता है कि लाओ मम्मा मैं ये कर देता हूँ. और फ्री टाइम में अब इसको हमें टाइम देना पड़ता है क्योंकि इसकी सिस्टर अभी बाहर स्टडी कर रही है. इसकी बड़ी बहन है जो कि MBBS कर रही है बाहर, तो हमें इसको टाइम देना पड़ता है. आजकल पड़ोस में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो मैं और इसके पापा ही फ्री टाइम में इसको पूरा टाइम देने की कोशिश करते हैं. और मेरे साथ ये चेस खेलता है या लूडो है या और भी जैसे बैडमिंटन है, तो ये गेम्स हम दोनों मिलकर इसके साथ खेलते हैं. साथ में अपने फ्री टाइम में दादा दादी के साथ कभी ये बातें करता है या उनके साथ खेलता है, तो इस तरह अपना टाइम अच्छा व्यतीत करता है. साथ में इसको पढ़ाई का शौक़ है. GK क्विज में इसने पार्टिसिपेट लिया था जिसमें ये फिनाले में पहुंचा है. तो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम और होपफुली ये जीतेगा और यहाँ पे हमारा नाम ग्रैंड पेरेंट्स का और पूरी सिटी का नाम रोशन करेगा, अपने साथ में अपने स्कूल का नाम भी रोशन करेगा. तो आई विश हिम गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.
अविराज समझदार तो बहुत है पर साथ में डिमांडिंग भी बहुत है। उसको हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो हमेशा हमें भी ऑन द टो रखता है। मतलब या तो उसके साथ खेलो या पढ़ो, उसको पढ़ाओ या कहीं उसको घुमाने ले जाओ। तो डिमांडिंग बच्चा बहुत है और मैं जो बचपन से देखती हूँ ये बहुत ही एम्बिशियस रहा है। जो अगर मैं इसको याद करूँ बचपन भी, तो इसकी कुछ अलग ही मतलब बातें होती थी। बहुत छोटा था तो इसने जो सबसे पहले मतलब बहुत छोटा था तो इसने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ जाना है। सबसे बोलता मम्मा हम यूएसए कब जाएंगे, या इसने बोला कि मम्मा हम रॉकेट में कब बैठेंगे। तो मैं हैरान होती थी कि ये बच्चा मतलब क्या बातें करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो अभी भी मैं देखती हूँ इसमें वो एम्बिशंस हैं और होपफुली ये पूरा करेगा एक दिन अपने एम्बिशंस को। इसको घूमने अविराज को घूमने का भी बहुत शौक है, तो ये नई नई जगहों पर घूमना पसंद है। जब ये 1 साल का था तो हम इसको सबसे पहले जो प्लेन में लेके गए थे बेंगलोर लेके गए थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगह घूमा है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ हम नहीं गए हैं वहाँ ये बोलता है कि मुझे यहाँ जाना है। अभी इन छुट्टियों में बोल रहा था कि दुबई चलो, मालदीव चलो या इस तरह से। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत डिमांडिंग है और इसको अपनी बात मतलब घूमने के लिए तो इतना नहीं कहूँगी, लेकिन टॉयज़ बनवाने के लिए इसके पास सब तरह के टॉयज़ हैं, सब तरह के कलर्स हैं। और मैं बोलती हूँ कि डोनेट कर दो बच्चे, क्योंकि इतने हैं और ये अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानता है। इसको अपनी बात मनवानी आती है, किसी ना किसी तरह से अपनी बात मनवा ही लेता है, खासकर अपने पापा से। डॉक्टर संजीव परमार मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं एज ए लेक्चरर हायर एजुकेशन में जॉब करता हूँ। अविराज परमार जो है ये मेरा बेटा है और बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। बचपन से आज तक ये मोस्टली मेरे साथ ही रहा हुआ है, मेरे साथ ही खेलता है और इसको पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक़ है। जीके में इसकी काफ़ी रुचि है और इसने KKHDK किसमें कितना है दम के 4 राउंड क्लियर किए हैं और अब यह KKHDK फिनाले राउंड में पहुंचा हुआ है। तो जहां तक इसकी हॉबीज़ की बात है, हॉबीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको खेलने का बहुत ही शौक़ है। बचपन से ही साइकिलिंग, बैडमिंटन और अभी अभी इसने स्विमिंग भी सीखी हुई है और मैं भी यह प्रयास करता हूँ कि यह सभी गेम्स खेलें
और अच्छा स्पोर्ट्समैन जो है वह बने। पुस्तकों में भी इसकी काफ़ी रुचि है और कभी कभी हमारे साथ बैठ के ये चर्चा भी करता है। जीके के बारे में और अन्य विषयों के बारे में भी यह चर्चा करता है। इसका एक शौक़ और भी है, यानी ये मंडी के देवी देवताओं का बहुत ही भक्त है। जब भी महाशिवरात्रि आती है तो सुबह से शाम तक यह देवी देवताओं को देखने के लिए खड़ा रहता है और वहाँ पर जाकर कई बार ढोल और नगाड़े भी जो है वह बजाता है। तो इसने अपने लिए एक ढोल भी खरीदा हुआ है, नगाड़ा। जब भी देवी देवता आएंगे तो बाहर खड़े होकर उसको बजाता है। और यहाँ हमारे घर के ठीक सामने एक देवता ठहरता है और वह उसके पास अक्सर जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसकी देवी देवताओं के प्रति भी बहुत ही आस्था है और मैं चाहता हूँ कि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा ही इसके ऊपर बना रहे। और ग्रैंड फाइनाले के लिए आई विश हिम एवरी सक्सेस इन लाइफ, स्पेशली फॉर ग्रैंड फिनाले KKHD। थैंक यू वेरी मच। बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं PKHD में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसके फाइनल राउंड में हूँ, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड यार, है मेरे को तो पता ही था। थैंक यू। तू इतना आगे पहुंच गया। थैंक यू। ओके, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूं बेटा? पूछ लो। पूछ लो। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। ओके। डू यू नो द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला। गुड। Chandigarh is a union territory or state? Union territory. Who is the Prime Minister of India? नरेंद्र मोदी। Very good. Keep it up बेटा, बहुत अच्छे बोल रहे हो आप। Thank you. Okay, welcome. एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इसके दादा जो हैं इसको बचपन से बहुत ही प्यार करते हैं। जब यह पैदा हुआ था ना तो दादा हमेशा कहते थे कि इसको मेरे पास सुला दो, मैं इसको देख लूँगा, है ना। जब इसको भूख लगेगी तो आपने मेरे पास आ जाना ऊपर और उसको फीड करा, इसको खाना खिला के चले जाना। तो दादा इसको बहुत ही प्यार करते हैं और जब जैसे जैसे यह बड़ा होता गया वैसे वैसे इसका लगाव भी अपने दादा के प्रति जो है वह बहुत ही बढ़ता गया। अक्सर दादा के पास जाता रहता था और दादा के पास बैठ के उनकी बातें जो है वह सुनता रहता था। जहाँ तक दादी की बात है, दादी से भी यह बहुत प्यार करता है और समय समय के ऊपर दादी से भी बातें जो है वह करता रहता है। और समय समय के ऊपर इसके दादा जो हैं पढ़ाई के लिए इसको मोटिवेट भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं कि किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कैसे जो है सफलता के नए आयाम जो हैं वह एक प्रकार से छूने हैं। तो यही बात जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक बचपन की बात है, नटखट तो है ही है, लेकिन घर के लिए इसको खिलौनों का बहुत ही शौक़ था बचपन से। तो एक बार इसने क्या किया, इसको हेलीकॉप्टर उड़ाने का बहुत ही शौक़ है, चाइनीज़। तो मैं ले आता था इसको, इसकी मम्मा बहुत नाराज़ होती थी, भाई 2500-3000 के आप ले आते हैं और एक ही दिन में तोड़ देते हैं। तो फिर उसके पश्चात क्या हुआ, अब 5-7 बार तो ऐसा हो गया कि 5-7 हेलीकॉप्टर उसने जल्दी जल्दी तोड़ दिए। फिर ये मेरे को कहने लगा कि पापा मैंने हेलीकॉप्टर लेना है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं अब। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा ठीक है। इसने क्या किया, यह नीचे से ऊपर दादा के कमरे में चला गया और वहाँ पर इसने ड्रॉर खोला और वहाँ से पैसे निकाले, 5-6 हज़ार रुपये निकाल के ले आया नीचे और उसने मेरे पास फेंके
ये लो पैसे, कितने पैसे चाहिए। और मैंने कहा बेटा तू पैसे कहाँ से ले आया? बोले मैं ले आया, मेरे पास पैसे हैं, मैं दादा के से निकाल के ले आया हूँ। और उसके पश्चात मैंने कहा नहीं बेटा ये गलत बात है, आप इन पैसों को ऊपर रख के आओ, मैं आपके लिए नया हेलीकॉप्टर ला के दूँगा। और ये इतना अच्छा निकला कि वो चुपचाप ऊपर गया, उन पैसों को वहाँ पर रख के आया और दादा को भी बताया इसने कि दादा मैंने आपके पैसे निकाले थे, मैं पापा के पास ले गया था, लेकिन पापा ने कहा कि आप इसको ऊपर रख के आओ। और पापा ने मेरे को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं अपने ही पैसे से आपके लिए हेलीकॉप्टर जो है वह खरीदूँगा। तो ये शरारत जो है एक बार इसने की हुई थी। नमस्कार जी, मेरा नाम टी.एस. परमार है, टेक सिंह परमार। मेरा पोता अभी KKHD के फाइनल में पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जीत कर आए। Causes of fire and fire prevention. A fire can have many causes. Fire safety rules help in preventing a fire. Here are some common causes of a fire and the safety rules that can follow to prevent it. Cooking. Cooking is the one of the main causes of fire and fire prevention. A fire can have many causes. Fire safety rules help in preventing a fire. Here are some common causes of a fire and the safety rules that can be followed to prevent it. Cooking. Cooking is the one of the main causes of fire at home. Kitchen stove should never be left untended, and flammable materials such as paper towels should be kept away from them. While cooking, well-fitting cotton clothes should be worn. Synthetic clothes should be avoided as they catch fire easily. In case of a gas leak, all doors and windows should be open in order to provide proper ventilation. We should not turn electric switches on or off during a gas leak. Electric switches produce sparks when switched on or off, which may cause a fire upon coming in contact with the gas. Faulty electrical appliances and damaged electric wiring can lead to a fire. We must ensure that all electric appliances are in good condition. Electric wires should be checked regularly for breaks in the plastic covering. I want to thank Varun sir and the whole team of KKHD
because they give me opportunity on this platform. And also thank you my grandparents, parents